سبحان اللہ. اور جب حضرت جبرائیل امین حضور کے کافوری تلووں کو چومتے ہیں اور میرے نبی اٹھ جاتے ہیں, اور اٹھنے کے بعد حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے, اللہ آپ کو عرش اعظم پر بلا رہا ہے, یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ چلیے, 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ آئے. سبحان اللہ. تو حضرات محترم, اب وہاں پر یہ بھی ہوا کہ اب جو ہے مسجد حرام, جو مسجد حرام کہاں پر ہے؟ مکہ شریف میں ہے, جہاں حجاج کرام نماز ادا کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور حضرات وہاں سے اب مسجد اقصی کی طرف جو ہے روانہ ہونے کی تیاریاں چل رہی ہیں. حضرات محترم, اب آپ کے لیے ایک براق بھی لایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی, اے جبرائیل امین جاؤ میرے محبوب کے لیے جنت سے ایک براق لے کر کے آؤ. سبحان اللہ. حضرات یہ آواز آئی جب حضرت جبرائیل امین جنت پہنچے. اب جنت میں بہت سارے براق ہیں, 40,000 براق کی تعداد ہے. اور حضرات اب وہاں پر بہت سارے براق ہیں اور اپنی خوشی سے جو ہے خوشی اور مسرت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور بڑے خوش ہیں کہ آج ہو سکتا ہے کہ ہم ہی کو چن لیا جائے, حضور کی سواری ہمارے اوپر ہو جائے. حضرات محترم, اب وہاں پر ایک براق کو دیکھا گیا. حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں ایک براق جو ہے علیحدہ بیٹھا ہوا تھا یا کھڑا ہوا تھا. حضرات محترم, وہ براق روتا ہے, اس کے آنسو نکل رہے ہیں, اب وہ رو رہا ہے. حضرت جبرائیل امین سوچتے ہیں اور کہ اتنے سارے براق ہیں, اب ان میں سے کس کو چنا جائے, اب ان میں سے کس کو لے جایا جائے. حضرات محترم, اب وہاں پر اب یہ براق جو ایک علیحدہ بیٹھا ہوا ہے, جو الگ بیٹھا ہوا ہے, اس براق کی لگام کو حضرت جبرائیل امین نے پکڑا ہے. اور حضرات محترم اس براق کو لے کر کے حضور کے پاس آ گئے ہیں. سبحان اللہ. اور آنے کے بعد جب میرے نبی سے فرمایا یا رسول اللہ آئیے, آپ کے لیے براق جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے, اب آپ چلیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب حضرات محترم, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پر سواری کرنے لگے ہیں, جب براق پر چڑھنے لگے ہیں, اتنے میں امت کا خیال آ گیا ہے. امت کا خیال آ گیا ہے. اور کیا خیال آیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اس وقت میری امت کہاں جائے گی؟ میری امت گنہگار ہے, میری امت خطا کار ہے, میری امت سیاہ کار ہے, میری امت کو کون بخشوائے گا؟ میرے آقا کو یہ خیال آیا. اور حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے, اے مولا میری گنہگار امت کو, میری گنہگار امت ہے اور اس کو کیسے بخشے گا؟ اب حضرات محترم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے, اے محبوب گھبرائیے نہیں, آپ آدھی رات آپ جو ہے آپ آرام فرمائیے. اب آپ آدھی امت کو بخشوانا چاہتے ہیں تو آدھی رات آرام فرمائیے, اور اگر آپ پوری امت کو بخشوانا چاہتے ہیں تو پوری رات آرام فرمائیے. پوری رات جو ہے جاگیے. حضرات محترم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات جاگ کر کے اپنی امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے تھے, رب حبلی امتی ہے میرے رب, میری گنہگار امت کو میرے حوالے فرما دے. حضرات محترم, پوری زندگی میرے آقا نے اگر راتوں رات جاگے ہیں اور ہم سب گنہگاروں کے لیے دعائیں فرمائی ہیں. سبحان اللہ. تو حضرات محترم, اب یہاں سے ایک بات اور نکلتی ہے, وہ کیا ہے کہ جو نبی جس کے بارے میں, کیونکہ انبیاء جو ہے معصوم ہوا کرتے ہیں, وہ گناہ سے پاک ہوا کرتے ہیں, اور حضرات جب نبی معصوم ہے اس سے گناہ جو ہے سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے. اب حضرات یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جس سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, وہ دنیا میں آنے کے بعد گناہگار امت کو یاد کرے, ہم خطاکار امت کو یاد کریں, ہم سیاہکار امت کو یاد کریں. اور آج امت کہاں جا رہی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. آج امت کون سے تہانے پر کھڑی ہوتی چلی جا رہی ہے. اس لیے پیارے, آج ضرورت ہے کہ ہم کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آج تک جس محبوب نے دنیا میں آنے کے بعد گنہگار امت کو یاد فرمایا ہے. پوری رات یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات میں جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے تو یہاں تک کہ آپ کے پاؤں پر برم آ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات برم آ جایا کرتا تھا, اور میرے آقا پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے ہیں, اے مولا میری امت کے جو گناہگار لوگ ہیں ان کو مجھے دے دے, اور میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کو تو لے دے. سبحان اللہ. تو حضرات محترم, یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ وہ نبی جب دنیا میں آیا تب بھی ہم کو یاد فرمایا. بارہا آپ سنتے رہتے ہیں
तो हज़रात कभी कभार हम और आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हम और आप अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि हमने उस नबी के लिए कितना किया है, जिस नबी की आंखों की ठंडक नवाज है, जिस नबी के ऊपर दुरूद पढ़ना हज़रात मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला की भी सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला भी दुरूद पढ़ा करता है, फरिश्ते भी दुरूद पढ़ा करते हैं और हज़रात मोहतरम सब दुरूद पढ़ा करते हैं। तो हम और आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, हम और आप ये भी देखें कि कब हमने कितना दुरूद पढ़ा है हुजूर पर, कितना हज़रात मोहतरम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाई है। जब हम अपने गिरेबान में झांक करके देखेंगे तब हमको पता चलेगा कि सारा वक्त जो है हमारा फालतू बातों में गुजर जाया करता है, जो फालतू की बकवास हुआ करती है हम और आप वही कर दिया करते हैं। कभी गाली गलौज कर दिया करते हैं, कभी किसी का अपने जबान से जो है दिल दुखा दिया करते हैं। हज़रात मोहतरम अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए, इसलिए कि कहा जाता है कि जब रात में सो तो अपने आप को देखो कि आज हमने दिन में कितने गुनाह किए हैं, आज हमने रात में कितने गुनाह किए हैं, या अब तक की जिंदगी में जो गुनाह हुए कितने गुनाह हुए। हज़रात मोहतरम इसीलिए कहा जाता है कि जब रात में सो तो बेहतर यही है कि अपने गुनाहों से तौबा करके सो जाना चाहिए, इसलिए कि हम सब जानते हैं कि हमारी मौत का कोई वक्त मुअय्यन नहीं है कि किस वक्त हमारी मौत आ जाए, मौत का फरिश्ता आ जाए और हमारी रूह कब्र से मुसरी से परवास कर जाए। कोई पता है? कोई पता नहीं है कि किस वक्त, क्या पता कि हम जुमे की नमाज पढ़ने आए और उसके बाद निकले, क्या पता मौत का फरिश्ता इंतजार करता हो कि वहां पर रूह निकालना है, वहां पर रूह कब्ज करना है, क्या पता कि वहां पर हमारी रूह कब्ज कर ली जाए। तो हज़रात मोहतरम मैं बात अर्ज कर रहा था, अगर इधर जाऊंगा तो बहुत वक्त गुजर जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाया गया, मेरे आका उस पर सवार हुए हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ चल पड़े हैं। अब मस्जिद अक्सा में बहुत सारे अंबिया किराम मौजूद हैं, वहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी मौजूद हैं, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी मौजूद हैं, बहुत सारे अंबिया किराम मौजूद हैं। और हज़रात मोहतरम जब बारी आती है मुसल्ला इमामत पर जाने की, नमाज पढ़ाने की, तो हज़रात किसी और को इजाजत नहीं होती बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर जाया करते हैं, सुभान अल्लाह, और नबियों की इमामत फरमाया करते हैं, सुभान अल्लाह। अब हज़रात मोहतरम आगे बात बढ़ती है, आप हज़रात ने बारहा ही सुना होगा। तो हज़रात जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा से अर्श आज़म की तरफ सिदरतुल मुंतहा की तरफ चल पड़े हैं, अब हज़रात जब हजरत जिब्राइल अमीन के साथ 70,000 फरिश्ते हैं और मेरे आका बुराक पर सवार हैं, और हज़रात मस्जिद अक्सा से अब आप सिदरतुल मुंतहा की तरफ चल पड़े हैं। अब सिदरतुल मुंतहा पर जाने के बाद हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह मैं अब इससे आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए कि मैं अगर इससे आगे बढ़ूंगा मेरे पर जल जाएंगे, मेरे पर जल जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्राइल जो है सुन, अब यहाँ तक तू आया है और तेरे महबूब की यानी अल्लाह के महबूब की यहाँ से इब्तिदा हुआ करती है, सुभान अल्लाह। अब तेरी यहाँ पर इंतहा हो गई है और अल्लाह के महबूब की यहाँ से इब्तिदा हो रही है, सुभान अल्लाह। अब हजरत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाने के बाद मैं कुछ नहीं मांगता, बस इतना मांगता हूँ कि जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजरती हो, मैं इतना मांगता हूँ कि आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज कर देना और कह देना कि जिब्राइल सिर्फ इतना चाहता है कि जब मेरी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही हो उस वक्त जिब्राइल अपने परों को बिछाना चाहता है, सुभान अल्लाह, अपने परों को बिछाना चाहता है, इसलिए कि जब हुजूर की उम्मत पुल सिरात पर से गुजरे तो मेरे परों के ऊपर से गुजरती हुई नजर आए, सुभान अल्लाह। तो हज़रात मोहतरम अब हजरत जिब्राइल अमीन ने यह कह दिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पर जाते हैं। अर्श आज़म कहाँ है? ये हज़रात सातों आसमान सब कुछ जो है सबसे ऊपर है और उससे आगे भी लामका है, सुभान अल्लाह। हज़रात अब मेरे आका को वहां पर क्यों ले जाया गया, मेरे आका को वहां पर क्यों बुलाया गया, वजह क्या थी? और वहां पर ले जाने के बाद, वहां पर बुलाने के बाद मेरे आका से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, ऐ महबूब सुनो, मैंने तुमको यहाँ पर इसलिए बुलाया है, मैंने अपनी मुलाकात के लिए इसलिए बुलाया है कि अब देख लो तुम्हारे कदमों के नीचे सातों आसमान है, सातों जमीन है, और देख लो तुम्हारे कदमों के नीचे ये आसमान भी है, सब कुछ तुम्हारे कदमों के नीचे है और तुम्हारे कदमों की ही बरकत से मैंने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सुभान अल्लाह। अब हज़रात मोहतरम मेरे आका जब रास्ते में थे, बात याद आ गई, जब मेरे आका रास्ते में थे तो हज़रात
हजरत जिब्राईल अमीन के साथ हैं, 70,000 फरिश्ते भी हैं। और मेरे आका जब जा रहे हैं, एक जगह पर मेरे आका ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके सर फोड़े जा रहे हैं, जिनके सर कुचले जा रहे हैं, जो तारिक सलात हैं, जो तारिक नमाज हैं। हजरात मोहतरम, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। मेरे आका ने जब ये देखा तो हजरत जिब्राईल अमीन से फरमाते हैं, ऐ जिब्राईल, ये कौन लोग हैं? तो कहा जाता है, हजरत जिब्राईल अमीन फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रहने के बाद अपनी नमाजों को जो है कज़ा कर दिया करते थे, नमाजों को नहीं पढ़ा करते थे। ये नमाज इन्होंने कभी पढ़ी ही नहीं है। ये अपने सरों को कुचल रहे हैं, ये अपने सरों को फोड़ रहे हैं, और फिर उसके बाद उनके सर सही सालिम हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो अपने सरों को फोड़ा करते हैं, सर कुचला करते हैं। अब हज़रात मोहतरम, यहाँ से समझ आता है कि हज़रात, हमने अपनी जिंदगी में कितनी नमाजों को छोड़ा है। हम और आप इस चीज का हिसाब लगाएं कि कितनी हमारी नमाजें कज़ा हुई है, कितनी हमारी फजर कज़ा हुई है, कितनी हमारी ज़ोहर कज़ा हुई है, कितनी हमारी असर कज़ा हुई है। हम और आप जब ये देखेंगे तब समझ में आएगा, और ये वाक़या पढ़ेंगे। मेरे नबी जब अर्श आज़म पर अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर मेरे नबी जो देख रहे हैं कि वो लोग अपने सरों को फोड़ रहे हैं, तो जो आज नमाज नहीं पढ़ेगा, जो तारिक सलात है, कल क़यामत के दिन उनका भी हश्र यही होने वाला है। हज़रात, हम और आप अपने असलाफ की जिंदगी को पढ़ें, अंबिया किराम की जिंदगी को पढ़ें, तभी हमको मालूम चलेगा कि हम और आपको जिंदगी कैसे गुजारना चाहिए। बारहा मैं बयान करता रहता हूँ, और बहुत से उलमा किराम से आप हज़रात सुनते भी रहते होंगे, जो पढ़ने वाले वो पढ़ते भी रहते होंगे, लेकिन अफसोस यह है, पढ़ने के बाद उस पर कुछ अमल नहीं होता, सुनने के बाद उस पर कुछ अमल नहीं होता, और कहा जाता मौलाना तो ऐसे ही हर जुमे बयान करता रहता। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रात, ये मौलाना जब बनते हैं तो हज़रात ये कौम की रहनुमाई के लिए बना करते हैं, ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहा करते। मैं बारहा कहता हूँ कि उलमा अपने फायदे के लिए कुछ नहीं कहा करते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको जो इल्म दिया गया है, उस इल्म की बुनियाद पर ये बोला करते हैं, और वो इल्म तुम तक पहुंचाने की कोशिश किया करते हैं। कि उलमा जो 10-10 साल 15-15 साल मदरसों में रह करके तालीम हासिल करते हैं, किसके लिए? हज़रात, की हमारी कौम अगर गलत रास्ते पर चली जाए, अगर रास्ता भटक जाए, तो हम इनकी इस्लाह फरमाएंगे। अगर यहाँ के लोग हैं तो हम उनकी इस्लाह फरमाएंगे, और आलिम बनेंगे वो उनकी इस्लाह फरमाएंगे। लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं, हमने अपने आप को सिर्फ ये समझा है ये मौलाना सिर्फ आते हैं, सिर्फ पैसा लेकर के चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम और आप अगर ये चीज अगर खत्म कर दें, इन बातों को खत्म करके जो मौलाना कह रहा है अगर उस पर अमल कर लेंगे, तो समझ लीजिए हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। कभी कोई मौलाना अपने फायदे के लिए कोई बात नहीं कहता, क्योंकि हज़रात, जब कहा जाता है कि जब बिदअतें जन्म लें, जब गलत काम होने लगे और उलमा खामोश रहें, तो समझ लीजिए अगर आलिम खामोश रहता है तो एक आलिम नहीं बल्कि गूंगा शैतान कहा गया है उसको। तो हज़रात, आलिमों की जिम्मेदारी है, उलमाए किराम की जिम्मेदारी है, और उलमाए किराम की जिम्मेदारी के साथ साथ आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर उलमाए किराम कोई बात बताएं तो उस पर आप भी अमल करें, और आपको नहीं मालूम है तो पूछें, और जब याद हो जाए तो आप भी लोगों की इस्लाह करते हुए चले जाएं। इसलिए हर एक मर्द मोमिन की जिम्मेदारी है, अगर कोई हमारी जमात में कोई गलत काम होता है, कौम मुस्लिम में अगर कोई गलत रास्ते पर चली जाती है, तो हमें चाहिए कि हम और आप उसको रोकते हुए नजर आए। अगर कोई डीजे बजाता है तो हम और आप डीजे को रोकें, कोई अगर जो है गलत काम करता है तो हम गलत काम से रोकें, झूठ बोलता है तो झूठ से रोकें, अगर सूद खाता है तो हज़रात सूद से जो है उसको रोकें। इसी तरीके से जो भी हराम काम है, उन सारे हराम कामों से हम भी रोकते हुए जाएंगे, और इंशाअल्लाह आप हजरात को भी हमारा साथ देना होगा। और जब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम और आप ये तहैया कर लेंगे, जब ये हम और आप जो है अहद कर लेंगे कि अपनी कौम को अच्छा बनाना है, अपनी कौम को अच्छे रास्ते पर खड़ा करना है, जो हमारे असलाफ ने जो रास्ता दिया है उस रास्ते को बताना है, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारी कौम कभी भटकेगी नहीं, कभी झूठ नहीं बोलेगी, कभी किसी की मेड़े नहीं काटेगी, कभी किसी के लिए हराम काम नहीं करेगी, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचेगी। तो हज़रात मोहतरम, आज जरूरत है हम और आप अपने काबिरीन की जिंदगी को पढ़ें। सबसे मेन मुद्दा यही है कि हम और आप अपने असलाफ की जिंदगी को भूल चुके हैं। हम और आप अपने असलाफ की जिंदगी को पढ़ें और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ किताबों का मुताला करें। कोई पढ़ने का कोई जो है पढ़ने की उम्र नहीं हुआ करती, आप किसी भी उम्र में इल्म हासिल कर सकते हैं, जो भी आपकी उम्र हो। अगर 65 साल की भी उम्र हो गई है और आपके दिल में अगर ये ख्वाहिश है
कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, मैं नमाज का सही तरीका सीखना चाहता हूँ, मैं वुज़ू का सही तरीका सीखना चाहता हूँ, तो आप शर्माए नहीं। इंशाअल्लाह ये उलमाए किराम तुम्हारी जो है इस्लाह करते हुए नजर आएंगे, तुमको पढ़ाते हुए नजर आएंगे। और इसलिए कि मेरे आका ने क्या फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर जो है फर्ज है। सबसे बड़ी चीज ये है। और आज जो कौम गलत रास्ते पर जा रही है उसकी असल वजह क्या है कि आज हमारे सीनों के अंदर जो है इल्म दीन नहीं है। हमारे बच्चे जो है वो इल्म दीन से खाली नजर आते हैं। हमने दुनियावी तालीम के लिए बहुत कुछ किया। सुबह में बच्चों को उठाया, 6 बजे अगर स्कूल जाना है तो हमारी माएँ उन बच्चों को उठा करके नहला धुला करके अच्छे कपड़े पहना करके इत्र में मलबूस करके और हज़रात मोहतरम उसके बाद इस इत्र में मुअत्तर करने के बाद उनको अच्छे से जो है नहला धुला करके घर से निकाल करके अपने आप गाड़ी में बिठा करके स्कूल लेकर के जाया करते हैं उनके माँ बाप। तो हज़रात मोहतरम अगर बाप नहीं होता है तो हज़रात माँ जाया करती है। अगर काश के जितना हमने स्कूल की पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को सजाया संवारा, लेकिन अगर तुमने कुरान की तालीम के लिए ऐसा किया होता तो आज बच्चा ऐसा नहीं करता। दुनियावी तालीम सीखने के बाद क्या होता कि माँ बाप बच्चे के सामने अपने सर को खम करते हुए नजर आया करते हैं, बच्चे के सामने अपने सर को झुकाते हुए नजर आया करते हैं। वजह क्या है कि बच्चा मास्टर बन गया, अब वो माँ बाप की उसको बातें अच्छी नहीं लगती। वो बच्चा जो है माँ बाप के सामने बिल्कुल तेज आवाज में बोला करता है। और जिसके सीने में अगर तुमने कुरान उतार दिया है, जिसको इल्म दीन सिखा दिया है, तो समझ लीजिए वो बच्चा माँ बाप के आगे सर झुकाता हुआ नजर आएगा। तो अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाइए। मेरा एक ही पैगाम है, क्योंकि हज़रात मोहतरम इल्म दीन से दूर हो जाओगे तो हज़रात सब कुछ हमारा खत्म हो जाएगा। कहा जाता है आधी रोटी खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, इल्म दीन अपने बच्चों को सिखाइए। मैं भी सिखाने के लिए तैयार हूँ और भी बहुत सारे उलमा जो है सिखाने के लिए तैयार हैं। आप हज़रात अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसलिए कि हमारा मुस्तकबिल यही है। जब हमारे बच्चों के पास तालीम होगी तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये कौम मस्जिद से दूर नहीं होगी, बल्कि मस्जिदों को आबाद करती हुई नजर आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे कहने सुनने में जो भी